Hello everyone. Hello learners. Welcome back to my YouTube channel Vidik Manthan, where we are running a series of completing criminal law. In this particular series, in this particular video, I have come up with the next lecture on Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. This is going to be part 3 of Bharatiya BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. In the previous lecture of BNS, in the second lecture of BNS, we discussed and understood the concept of the mens rea. We discussed the theory of intervening causes. We also discussed uh, what does the ordinary hazard mean. We also looked at the fact of actus reus in relation to time, place, and person. We also saw the concept of mens rea, uh, which relates to mala in se and mala in prohibito. I discussed mala in se and mala in prohibito with the help of the landmark judgments. We discussed the R versus Prince, R versus Tolson, in which we saw that in R versus Prince there was a concept, or we can say that it gave the birth of the concept of mala in se, R versus Prince, which was the case of kidnapping or abduction, I must say. So that was intrinsically wrong. Kidnapping or abducting a person is intrinsically wrong. वो intrinsically wrong है, उसका कोई डिफेंस नहीं है, तो वो मैला इनसे which is unforgivable. We looked the R versus Tolson or Queen versus Tolson, which was the case of Mala in Prohibito, in which that lady who waited for her husband for around 6 to 7 years, then after getting a belief, a reasonable belief, I must say that now I think she has become a widow. Now she got a belief that I have become a widow. Now I should remarry. The sooner she remarries, then her husband appeared after a couple of months of a marriage. So this was the case of Malan Prohibito, in which we could see that she followed good faith. Here, good faith means due diligence and care, means attention, care. She took reasonable steps to find out her husband. When she couldn't do, she remarried. So the court found that she is not guilty of bigamy, and it is though it is prohibited, but she followed good faith. So it is a mala in prohibito, which is not intrinsically wrong, unlike the Queen versus Prince one. So these were the cases of English laws on mens rea. Now, as far as Indian laws are concerned, Indian judgments are concerned, I must not miss. I should not miss. I cannot afford missing the case of Indian law on mens rea. There is a landmark case. We all are very much aware with this case, which is Mayor Hans George versus State of Maharashtra. It is 1965 case, which is famously known as MH George case. This is one of those cases which we are get acquainted to in our very earlier days of law colleges. So it is one of them. It is such a famous case on mens rea, in which we get to know the concept of ignorance of law is no excuse. So in this MH George case, what happened that there was a person, MH George. He was basically a German smuggler. He left Zurich by a Swiss plane, Swiss aeroplane था. Uh, this MH George was a German smuggler. He left Zurich by a Swiss aeroplane. In that plane, he was carrying 34 kilos of gold, and he wanted to deliver it in Manila. But जिस प्लेन में वो था, that Swiss plane, that plane had not to go Manila directly. It had to land in India. I think the name of the airport was Santa Cruz, if I'm not wrong, in Bombay. So that plane
अराइव्ड बॉम्बे, और वहाँ पे उसकी रिफ्यूलिंग होनी थी या मेंटेनेंस के पर्पज से उसका वहाँ पे लैंड होना था. सो इट लैंडेड देयर ऑन इन बॉम्बे एयरपोर्ट, एट बॉम्बे एयरपोर्ट. So at this airport, on the basis of the prior information what custom officer had related to this gold smuggling kind of thing, so on the basis of prior knowledge the custom officer searched the plane as if anybody is consigning this kind of gold what I have got the information. The custom officer goes, they search, and they find a passenger who was consigning this 34 kilos of gold with himself. So this 34 kilos of gold, basically as per the Indian law at that point of time, was illegal, was an offense to bring in India without the permission, without the general permission of RBI or specific permission of RBI. Now, what happened that the custom officers को पकड़ते हैं, then basically he was prosecuted for committing an offense under FERA, Foreign Exchange Regulation Act. Under that act he was prosecuted. सो जब इसका ट्रायल कोर्ट में केस चलता है, ट्रायल कोर्ट मीन्स बॉम्बे में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब केस चलता है, देन ही टुक अप सम डिफेंस, सम पॉइंट्स टू कंटेंड. he contended that he contended two things. First of all, he had no mens rea to commit any kind of illegal activity or offense in India. Second, that the prevailing law at that point of time, उसको इस लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी. ही डिड नॉट नो अबाउट दिस लॉ, दैट दिस लॉ इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया. ही हैड नो knowledge about such rules or regulation of FERA, that what FERA said. FERA का ये कहना था कि any person, any foreigner who is coming to India should not bringing gold, a certain amount of gold, without permission. तो दैट एम एच जॉर्ज ब्रॉट इट. बेसिकली एम एच जॉर्ज तो मैनिला लेके जा रहा था उसको डिलीवर करने, बट इंडिया में वो उतरा, उसका प्लेन लैंड हुआ. दो एम एच जॉर्ज डिड नॉट अलाइट फ्रॉम द प्लेन. एम एच जॉर्ज प्लेन से उतरा नहीं, वो प्लेन में ही बैठा रहा. तो तब भी उसको प्रोसिक्यूट किया गया कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप इंडिया के टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं फ्रॉम एनी वे, you are expected to be well conversant of each and every law prevailing in India, जो कि एम एस जॉर्ज को लॉ के बारे में नहीं पता था. सो दिस वॉज हिज मिस्टेक. सो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड इन प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कोर्ट. मजिस्ट्रेट कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको पनिश किया, इसको इम्प्रिजनमेंट दिया, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच अपील जाती है हाई कोर्ट में. Now, against that punishment, appeal goes to the high court. हाई कोर्ट में जो ये डिफेंस लेता है, जो पॉइंट बोलता है, यही 2 पॉइंट बोलता है कि इसका ना मेंस रिया था ना इसको नॉलेज थी. मेन थिंग नॉलेज, इसको नॉलेज ही नहीं थी. हैड ही बीन कन्वर्जेंट, हैड ही बीन नोन टू दिस रूल, तो वो शायद नहीं लेके आता. इसका ये डिफेंस पॉइंट था. तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड हिज पॉइंट, एक्सेप्टेड हिज कंटेंशन एंड एक्विटेड हिम. यस, हाई कोर्ट एक्विटेड हिम. Then using Article 136 of Constitution of India, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है ऑन फर्दर अपील. सुप्रीम कोर्ट restores the judgment of magistrate court, residency magistrate court, which had prosecuted, which had sentenced him for 1 year. सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन such a depth because it is a very landmark case, so I'll be referring again and again this case in a further lectures. So Supreme Court says that any person who is coming to India, that person is expected that he knows each and every law of India, और वो किसी लॉ को वो वायलेट नहीं कर रहा होगा नोइंगली और अननोइंगली. कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा अगर आप ये डिफेंसिव पॉइंट उठाएंगे कि मुझे लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी या मेंस रिया नहीं था, जो कि एम एस जॉर्ज ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किया, और हाई कोर्ट ने गलती से एक्सेप्ट भी कर लिया था, जो कि उसको, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया, मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की डिसीजन को. तो यहाँ से ये पॉइंट निकलता है कि एक प्रिंसिपल निकलता है कि
No one can get excuse of ignorance of law. Ignorance of law is no excuse. Further we will study that ignorance of fact can be excused, but ignorance of law has no excuse. It does not exonerate you, it does not give you any kind of relief as far as sentence is concerned. Now this was MS जॉर्ज केस. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, मैलाइन से या मैलाइन प्रोहिबिटो, मैलाइन से इंट्रिंसिकली रॉन्ग है, मतलब इट कैन नॉट बी फॉरगिवन, अनफॉरगिवेबल है. इट मीन्स दैट इंट्रिंसिकली रॉन्ग है, इसके मतलब यहाँ पे मेंसरिया, हेयर द concept of menstruation has always been immaterial in this case. इसका मेंस्ट्रिया तो बता रहा था कि मेरा मेंस्ट्रिया मेरा गिल्टी माइंड नहीं था ऐसा कुछ करने का, ऐसा कुछ लाने का. मुझे नहीं पता था कि इंडिया में कोई ऐसे प्रिवेलिंग लॉ है. ही हैड नो मेंस्ट्रिया. नाउ इट मीन्स दैट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आर दोज केसेस in which menstruation is immaterial. Whether you had menstruation or no, it is immaterial. You did that act, so you will be punished. It is as simple as that. Now, in this we can say the application of mala in se. I will try to take another case of Nathulal versus state of UP. This is the another important case. Nathulal versus state of UP. In this case, Nathulal wanted to sell some particular grain of which he needed license from government, from a specific from the concerned government. So he applied for the license. He applied for that license. He kept waiting for 1 year, but he did not receive any kind of formal license, formal acceptance that your recommendation for grant of license has been accepted and you are being permitted to sell that particular grain. इसको 1 साल तक वेट किया, बट इसको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई कन्वर्सेशन इसको मतलब हार्ड कॉपी में कोई लाइसेंस इसको नहीं मिला. 1 साल के बाद इसको पता चलता है कि आपको परमिशन मिल गई है, आप दैट ग्रेन वॉट यू वांटेड टू सेल यू कैन स्टार्ट सेलिंग. तो इन गुड फेथ इसने गुड फेथ यहाँ पे दिखाया. कैसे गुड फेथ दिखाया, यहाँ पे गुड फेथ इसने ये दिखाया कि जैसे लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई किया, अभी he could have done this thing also. He applied for license, he could have directly started for selling the grain, और बाद में जब कोई बात पड़ती तो ये कह सकता था कि मैंने अप्लाई कर दिया है. सो दैट कुड बी अनरीजनेबल टू डू, बट इसने ऐसा नहीं किया. ही शोड हिज प्रूडेंस. इसने क्या किया, लाइसेंस के लिए 1 साल तक वेट किया. 1 साल के बाद इसको फिर भी फिजिकल हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है. इसको एक जानकारी मिलती है कि आपको परमिशन मिल गया है और आप फूड ग्रेन जो बेचना चाहते थे डैट यू कैन स्टार्ट सेलिंग. सो बट जब ये स्टार्ट करता है सेल करना, देन ही गेट कॉट, वो पकड़ा जाता है. और लाइसेंस इसके पास रहते नहीं है क्योंकि फिजिकल कॉपी डेट हार्ड कॉपी इसको डिलीवर की नहीं गई थी 1 साल के बाद भी. बस नॉलेज इसको कहीं से मिल गया था कि इसने बता दिया था कि आपको परमिशन मिल गया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ ही स्टार्टेड सेलिंग. फिर जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली दिस केस वाज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दिस इज malign prohibito. He showed good faith. This is not intrinsically wrong. This is not something which is unforgivable. This is something in which some kind of permission needed of the government. He tried for that permission. He kept waiting for a reasonable period of time, that is 1 year. बट उसके बाद भी उसको एक परमिशन की नॉलेज कहीं से मिली होगी तभी इसने स्टार्ट किया. तो दिस वॉज मैलाइन प्रोहिबिटेड, नॉट मैलाइन से. नो नेक्स्ट क्वेश्चन comes in our mind that the maxim what we studied yesterday, actus non facit reum nisi mensit rea, which means actus reus plus mens rea makes me an accused. मेरा एक्ट जो है वो कल्पेबल है, प्लस मेरा जो इंटेंशन है उस एक्ट को करने का वो भी कल्पेबल है, वो भी गिल्टी है, वो भी इल है. अगर मेरा एक्टस रेयस और मेंस रिया कपल्ड हो जाते हैं तभी मैं कह सकते हैं कि मेरा एक्ट करने का जो
मकसद था वो एक ऑफेंस का था कि मैं ऑफेंस करना चाहता था. So does actus non facit reum nisi mens rea apply on BNS? Does it apply in Indian criminal law? Does it apply in IPC or BNS for that matter? So the answer is no. It does not apply on IBC on BNS. Basically, if we have a look in BNS, each and every provision, each and every offense is appended with its own guilty state of mind. मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेस बीएनएस में ऐसे लिखे गए हैं कि whoever does this act fraudulently, whoever does this act malignantly, whoever does this act with this intention. It means that particular state of mind, that particular guilty state of mind has been appended or attached to each and every provision. But सो वी कैन से दैट बीएनएस में हर एक ऑफेंस का जो स्टेट ऑफ माइंड है, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, वो उसके साथ लिख दिया गया है. तो जहाँ लिख दिया गया वहाँ पे कोई रूम ऑफ डाउट है ही नहीं. लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा गया है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डीम कर लिया जाता है कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फॉल करेगा. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फॉल करने का नतीजा ये होता है कि एक्यूज का मेंसरिया था कि नहीं था, इट इज़ इमटेरियल. वहाँ पे मेंसरिया की आस्क होती ही नहीं है. The court will not be interested to find your mens rea, whether did it exist behind that act or not. If you have done this crime, if you have done this particular act, it is culpable. For an example, I think if you all have watched my first or second lecture, probably, in which I took the example of food adulteration. Any shopkeeper, अगर वो किसी ग्रेन के साथ, किसी फूड ग्रेन के साथ छेड़खानी करता है, मतलब कि एडल्ट्रेशन करता है, मिक्स करता है, इम्प्योर करता है, चाहे वो अगर वो कर रहा है, इसका मतलब उसका मेंस है. अगर मान लेते हैं उसकी दुकान पे पाया ही गया, केस लेते हैं दूसरा वाला, पाने वाला, वो कहीं से लेकर के आया बेचने के लिए, वो ऑलरेडी एडल्ट्रेटेड फूड था, उसकी दुकान पे पाया जाता है. फूड इंस्पेक्टर उसकी दुकान पे उसको पाते हैं फूड एडल्ट्रेटेड फूड के साथ. नो, ही विल बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर nature of food grain has been found in his shop. So he will be punished with regardless of the fact whether he had mens rea or not. So this is strict liability. Strict liability is the we can say that scope of in which we in law of tort we study strict liability and all. Now in strict liability we have seen that in which we are not required or need to prove any kind of mens rea. बीएनएस के हर एक ऑफेंसेस के साथ उसका मेंस्ट्रिया अटैच कर दिया गया, लेकिन जहाँ अटैच नहीं हुआ, जो ऑफेंस मेंस्ट्रिया की बात नहीं करता है, वो मान लेते हैं कि वो वहाँ पे मेंस्ट्रिया की ज़रूरत है ही नहीं, तभी बात नहीं की गई है, और वो ऑटोमेटिकली फॉलो होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में, जहाँ पे मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाएगा. तो इसीलिए यही रीज़न है कि ये जो मैक्सिम है इट डज नॉट अप्लाई इन इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अप्लाई करता तो जहाँ पे मेंस्ट्रिया नहीं अटैच्ड है वहाँ पे कोर्ट देखती कि इसका मेंस्ट्रिया था कि नहीं था. इसका मेंस्ट्रिया था कि नहीं था, वो कोर्ट की ड्यूटी होती है फाइंड आउट करना, जो कि अब कोर्ट को नहीं करना है. क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है बीएनएस का या आईपीसी का कि जहाँ पे मेंस्ट्रिया नहीं दिया गया वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है. कोर्ट मान लेगी कि मेंस्ट्रिया आपका था. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ नेग्लिजेंस and recklessness. In negligence and recklessness, basically we get to see many news based on this negligence and recklessness or रैशनेसली जो ड्राइव करते हैं कार, रोड एक्सीडेंट होता है, उसकी काफ़ी न्यूज़ हम सुनते हैं. ये बेसिकली दैट विल बी द क्लासिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस नेग्लिजेंस एंड रैशनेस और रेकलेसनेस का कॉन्सेप्ट. वहाँ पे जो पनिशमेंट मिलती है उस ड्राइवर को जो कार बहुत तेज़ी से चला रहा था, रैशनेसली चला रहा था, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन चला रहा था, बहुत तेज़ी से चला रहा था, वो आगे चल करके एक्सीडेंट करता है. अब उसको पनिशमेंट क्यों मिलती है? लेट अस सी. इन नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस देयर आर टू थिंग्स विच डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस.
इंटेंशन इंटेंशन नहीं रहता है। वो जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, क्या उसका इंटेंशन ये रहता है कि मैं इतना तेज इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इंटेंडिंग टू हार्म समबडी, आई एम इंटेंडिंग टू फॉर एक्सीडेंट, कि मुझे एक्सीडेंट करना है, किसी को ठोकना है, किसी की जान लेना है, क्या उसका ये इंटेंशन रहता है? वो तो बस ड्राइव कर रहा है आउट ऑफ हिज ओन फैंटेसी, तो इंटेंशन तो उसका बिल्कुल नहीं रहता है। अगेन नॉलेज, नॉलेज भी नहीं रहती है। नॉलेज इन द सेंस दैट he believes he is in his wrong belief that everything is fine, nothing bad is going to happen, everything is in his control and everything will be fine. दिस इज हिज रॉन्ग बिलीफ। इसको नॉलेज ये नहीं रहती है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो इसको पनिशमेंट मिलती है, आपने देखा होगा कि ऐसे केस में पनिशमेंट बहुत नॉमिनल सा होता है, 2 साल की पनिशमेंट होती है, 1-2 साल की पनिशमेंट होती है। अब जो ऐसे ड्राइवर जिसका ना इंटेंशन है ना नॉलेज था, बट एक्सीडेंट कमिट कर दिया, किसी की मौत हो गई, फिर भी उसको पनिशमेंट मिलता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंटेंशन नॉलेज उसका था ही नहीं, जबकि होना चाहिए था। एक्टस रियस प्लस मेंस रिया होना चाहिए था। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसको पनिशमेंट इसलिए नहीं मिलती कि ये नहीं था, उसको पनिशमेंट इसलिए मिलती कि उसको ये पता होना चाहिए था कि कुछ हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी ल्यूसिड वे। देयर आर टू थिंग्स, knowledge to do, knowledge that it can be done. Knowledge to do, as far as this is concerned, knowledge to do मतलब कि अच्छा मान लेते हैं कि उसी ड्राइवर को नॉलेज हो कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे यहाँ से एक लड़का ऐसे निकलेगा, मुझे उसको, या एक लड़का यहाँ से निकलेगा, ये उसको नॉलेज है। लेट अस टेक मोर सिंपल एग्जांपल, लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल। सपोज मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक हाईवे पे, मुझे पता है कि यहाँ पे आगे स्कूल है। इट इज़ मी हु नोज एवरीथिंग कि यहाँ पे स्कूल है, मुझे नॉलेज है इस फैक्टर कि यहाँ पे स्कूल है, कभी भी कोई सामने आ सकता है सडनली, एंड लो एंड बिहोल्ड आई कैन कमिट सम एक्सीडेंट और सम ऑफेंस। बट ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा पर्सन है जिसको उस स्कूल होने, उस अदर पर्सन को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस स्कूल, वहाँ पे स्कूल होने का। उसको नहीं पता कि यहाँ से कोई सडनली आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है नॉलेज टू डू। अगर मेरा ये इंटेंशन होता, मेरा नॉलेज होता कि मुझे इस लड़की को ठोकना है, इसकी डेथ करनी है, तो मेरा नॉलेज और उसका नॉलेज डिफरेंट है। तो इसके मतलब नॉलेज टू डू ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि सब्जेक्टिव है, जो कि ऑब्जेक्टिव है नहीं, सब्जेक्टिव है। मतलब कि एक सेम फैक्ट पे, सेम पॉइंट ऑफ फैक्ट पे दो डिफरेंट नॉलेज होना, दो डिफरेंट ओपिनियन होना। मुझे पता है कि अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है स्कूल है। उसको पता है, उसको रॉन्ग बिलीफ है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सब कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि स्कूल दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अंदर साइड में, बट रोड कनेक्टेड है। उसको पता है, रॉन्ग बिलीफ में है कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, इंटेंशन नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है उसको वहाँ पे स्कूल होने का। मेरा इंटेंशन तो नहीं है, बट नॉलेज है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो नॉलेज टू डू, तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सेकेंड इज नॉलेज दैट इट कैन बी डन, दिस इज वेरी मच ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव। मैं कार बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा हूँ, जो कार के बाहर रोड साइड पे जो खड़ा हुआ इंसान है, वो मेरी कार को देखता है, वो डर जाता है, उसको पता है कि ये इतना तेज़ जा रहा है, अभी आगे एक्सीडेंट हो सकता है, पक्का होगा। वहाँ पे 100 लोग मेरी कार को देखे, मैंने इतनी तेज़ी से निकाला कि 100 लोगों की नज़र मैंने अट्रैक्ट कर लिया, और सबका ओपिनियन यही फॉर्म हुआ कि ये एक्सीडेंट कर सकता है, इतनी तेज़ कार कौन चलाता है, एक्सीडेंट होगा, पक्का होगा अभी। अब यहाँ पे जो सेकंड पर्सन की जो थॉट है, सेकंड पर्सन की जो ओपिनियन है, वो मैटर करता है। मतलब कि सब लोगों ने सेम चीज़ सोचा, सब लोगों ने सेम चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि एक्सीडेंट होगा, इतनी तेज़ कार नहीं चलानी चाहिए। So this is something objective in nature. Knowledge that it can be done is seen from the second person's perspective, from the second person's point of view, not from the
एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज टू डू एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, नॉलेज दैट इट कैन बी डन सेकेंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो जो नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस या रैशनेस की जो ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें नॉलेज दैट इट कैन बी डन अप्लाई होता है, ना कि नॉलेज टू डू अप्लाई होता है। उसको पनिशमेंट इसीलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है वो नॉलेज दैट इट कैन बी डन होता है। सेकेंड पर्सन को थॉट आई आपकी कार को देख करके, इतनी तेज़ी से चला रहे हो कि कुछ हो सकता है, तो यही चीज़ आपके दिमाग में क्यों नहीं आई, तो पनिशमेंट आपको इसलिए मिलता है कि ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी तेज़ कार नहीं चलाई जाती है। सो नॉलेज दैट इट कैन बी डन, दिस इज ऑब्जेक्टिव। Now I happen to move to the next concept. uh, if we talk about another thing, another nuances of criminal law, which is doctrine of transferred of malice. What does malice mean? Malice mean ill intention, ill intention or bad intention. तो ये बैड इंटेंशन या बैड एक्ट कह लें, ये जब ट्रांसफ़र होता है किसी ऐसे पर्सन से दूसरे पर्सन पे जिसका मुझे इंटेंशन था ही नहीं हार्म करने का, आई इंटेंडेड, आई एम अ पर्सन, आई इंटेंड टू किल ए, बट वो जो मेरा एक्शन था वो किसी रीज़न के वजह से वो एक्शन रिकोर्स हुआ, तो ट्रांसफ़र हो गया पर्सन बी के खिलाफ और पर्सन बी की मौत हो गई। मैं खीर बनाता हूँ, मैं खीर में पॉइजन मिक्स करता हूँ एंड आई कीप इट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड आई नो वेरी वेल दैट अभी ये आएगा डिनर करेगा, तो हो सकता है अभी ये खीर भी खाएगा और देखेगा तो खीर पक्का खाएगा, तो मैं खीर बना के यहाँ पे रख देता हूँ, खीर खाएगा, पॉइजन मिला हुआ है, उसकी डेथ हो जाएगी। हो सकता है कि बी के आने से पहले सी आ गया, सी डिनर करता है, खीर खाता है, डेथ उसकी हो जाती है, विच आई डि नॉट वॉन्ट टू हैपन। मुझे मारने का मकसद बी का था, बी को था ना कि सी को था, तो ये ट्रांसफर्ड ऑफ मैलिस हुआ। बी भी एक पर्सन था, सी भी एक पर्सन था, तो हमेशा ये याद रखना कि ट्रांसफर्ड ऑफ मैलिस पर्सन टू पर्सन होता है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन, person to person. Transfer of malice does not take place between animal to person, between animal to person और person to animal, एनिमल टू पर्सन और वाइस वर्सा, पर्सन टू एनिमल के बीच में ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट डज नॉट टेक प्लेस, इट फाइंड्स इट्स प्लेस बिटवीन पर्सन टू पर्सन। लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। आई वांट टू, मेरे नेबर का एक कुत्ता है और बहुत इरिटेट करता है, तो मैंने एक दिन ठान लिया कि आई हैव अ गन, आई विल शूट इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू शूट इट। मैं शूट करता हूँ, बुलेट ज़मीन पे लग करके रिफ्लेक्ट हो करके रिकोर्स होती है और उसके मालिक को लग जाती है, उसके मालिक को लग जाती है कुत्ते की। मेरा मारने का मकसद एनिमल को था, डॉग को था, लेकिन उसके मालिक को लग जाती है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे मेरी मेरी पनिशमेंट क्या होगी? लेट अस टॉक अबाउट दिस पनिशमेंट। एज फार एज एनिमल या उस डॉग को मारने का अटेम्प्ट जो मैंने किया, मरा तो नहीं, मर भी गया होता तो उसके हम बाद में बात करेंगे, अभी मरा तो नहीं, तो अटेम्प्ट टू किल दैट डॉग, बट अनफॉर्चुनेटली रिकोर्स होती है बुलेट और स्ट्राइक करके उसको उसके मालिक को लग जाती है। तो एनिमल तो नहीं मरा बट पर्सन मरा, तो उस पर्सन की जो डेथ हुई उसकी पनिशमेंट मुझे क्या मिलेगी? मर्डर तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे मिलेगी मेरा जो एक्ट था वो रैशनेस था, वो नेग्लिजेंट था। तो नेग्लिजेंट होने की जो पनिशमेंट होगी दैट आई विल बी गिवन, मुझे वो पनिशमेंट मिलेगा, ना कि एनिमल, मुझे वो पनिशमेंट मिलेगा जो उसके मालिक को लगी गोली और उसकी डेथ हुई, मर्डर का नहीं मिलेगा। एनिमल विजा वी एनिमल, विथ रिगार्ड्स टू एनिमल,
मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेट मी टेल यू। बिकॉज लाइफ किसकी गई? पर्सन की। लाइफ किसकी नहीं गई? एनिमल की। लाइफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? क्या बीएनएस में दिया हुआ है? इफ वी गो टू सेक्शन 2 क्लॉज 11, sorry, section 2 clause 17, if I'm not wrong, 2 clause 17, let us see how the word life is defined. Life means the life of a human being unless the contrary appears from the context. The life of a human being, this is the general rule. Here the here life किसकी जा रही है? पर्सन की। लाइफ का डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग। तो किसी की डेथ तभी मानी जाएगी, या किसी की लाइफ गई वो तभी मानी जाएगी जब वो ह्यूमन बीइंग होगा। एनिमल की लाइफ के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात की गई है। सो एनिमल को मैंने मारने की कोशिश किया, यहाँ पे एनिमल विजा वी टू एनिमल आई विल नॉट बी गिवन एनी पनिशमेंट वॉट सो एवर। आई एम गेटिंग द पनिशमेंट, आई एम गेटिंग द पनिशमेंट फॉर द पर्सन जो गलती से मरा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वाइस वर्सा ऑफ द सेम। इफ आई इंटेंडेड टू किल मालिक ओनली, आई वांटेड टू किल दैट पर्सन ओनली, जिसका वो कुत्ता था। अगर मेरा इंटेंशन उसको मारने का था, लेकिन बुलेट या फिर निशाने से चूक गया, मैं मार नहीं पाया, और टारगेट पे आ गया डॉग, उसकी मौत हो गई। और ये बाद में प्रूव हो जा रहा है कि मेरी और उसकी कुत्ते के मालिक की दुश्मनी थी, और जो मैंने गोली चलाया था वो उसको मारने का था, मालिक को, लेकिन गलती से कुत्ता मर गया। अब जो मैंने मालिक को मारने की कोशिश किया लेकिन नहीं, बट चूक गया निशाना, तो उस पर्सन के विजावी विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन आई विल बी पनिश्ड। कुत्ते की जो जान जाती है यहाँ पे वो कवर नहीं हो रहा है लाइफ में, क्योंकि लाइफ ऑफ नॉट एनिमल, लाइफ ऑफ अ एनिमल नहीं लिखा है, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग लिखा है। तो विजावी टू दैट ह्यूमन बीइंग, विजावी टू दैट मालिक ऑफ कुत्ता, आई विल बी गिवन टू अटेम्प्ट टू मर्डर, आई विल बी चार्ज अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि मैंने एक पर्सन को मारने की कोशिश किया। अब जो कुत्ता मरा इन एक्चुअल, उसका पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगा। ये बोल सकते हैं कि वो फ्री फंड में मारा गया, यस। अगर आप बोलें कि वो मिसचीफ लगेगा, सर मिसचीफ भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें भी इंटेंशन होना चाहिए। मेरा एक इंटेंशन होना चाहिए गलत काम करने का, मिसचीफ कमिट करने का। इंटेंशन है नहीं, कुत्ता फ्री फंड भी मारा गया है, उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो पनिशमेंट मुझे मिल रहा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मिल रहा है, उसके मालिक को मारने का जो कोशिश था मेरा। सो दिस इज एनिमल टू पर्सन, पर्सन टू एनिमल। नाउ पर्सन टू पर्सन के बीच में ही ट्रांसफर ऑफ मैलिस लगता है। मैंने शूट किया ए को मारने के लिए, बट बी को निशाना लग गया, बी को मार दिया मैंने। तो ए का क्या लगेगा? ए की जो पनिशमेंट मुझे मिलेगी, जो एक्चुअल में नहीं मरा, निशाना चूक गया, तो विज वी टू दैट पर्सन आई विल बी चार्ज अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर। जो दूसरे पर्सन को लग जा रहा है वो रैशनेस और नेग्लिजेंस में आएगा मेरा एक्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। आई वुड लाइक टू गिव यू एन one I would like to give you a judgment on this. The judgment is Queen versus Latimore of 1886. In this, A shoots at a dog. इसमें होता है कि ए होता है, वो शूट करता है एक डॉग को, लेकिन वो मिस हो जाती है बुलेट और हिट कर देती है एक पर्सन डी को, जो कि वो वैसे इसमें हुआ गया था कि एक लेडी थी, आई थिंक लेटिमर, वो एक डॉग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो बुलेट होता है वो कहीं से स्ट्राइक करके ऊपर चली जाती है, बुलेट रिकनसाइल हो जाती है और ऊपर खड़ी हुई एक पर्सन को लग जाती है, पर्सन डी, इसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे जो कुत्ते को मारने की कोशिश की गई, उसकी पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी, लेकिन जो गलती से मर गया ऊपर, उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी, एंड द पर्सन ए विल बी चार्ज्ड अंडर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, because there is no transfer of malice from dog to person or person to dog. So this is the concept of doctrine of transfer of malice or transfer of intention.
Now, the next concept before going section 1, ongoing section, before going on section 1, I would like to discuss a very small thing. What does good faith mean? If we have a look in General Clauses Act, we get separate definition. If we have a look in BNS, uh, in General Clauses Act, it is defined as good faith is defined as any act which is done with good intention and good good intention and honesty. इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो डेफिनेशन है गुड फेथ को लेकर के वो है कि कोई भी किया हुआ एक्ट या ओमिशन के पीछे गुड इंटेंशन रही हो। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय जनरल क्लॉजेज एक्ट। बट गुड इंटेंशन और ऑनेस्ट का कोई जगह या कोई प्लेस बीएनएस में नहीं है। You will not be given any relief or you will not be exonerated of your offense with the contention of having good intention or honesty. BNS says that I embrace, I accept no good intention. आपकी लाख गुड इंटेंशन रही हो, लाख ऑनेस्टी रही हो, उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। गुड फेथ बीएनएस में हमेशा एक ही मतलब होता है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन किया गया, उस एक्ट और ओमिशन के पीछे एक ड्यू केयर एंड अटेंशन कह लें, या यू वर क्वाइट डिलीजेंट, you were quite careful, and you were quite attentive. So good faith always means in criminal law that it is done with due care and attention. So this is the definition of good faith in criminal law in BNS. Uh, Now if we start from the Bear Act, I think this much is enough as far as the building the foundation understanding. Now I should start the Bear Act per se. Let us open the first page, the preamble of Bharatiya Nyaya Samhita. The BNS, Bharatiya Nyaya Samhita 2023. It says, let us read the long title of this act, this preamble. लॉन्ग टाइटल क्या होता है? जो ऊपर एक लंबी सी लाइन लिखी है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड एंड डाइसेक्ट। कंसोलिडेट मीन्स इकट्ठा करना, स्कैटर्ड एंड स्प्रेडेड लॉज को इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, और एक जगह इकट्ठा लिख देना, उसका मतलब होता है कंसोलिडेट करना। तो ये इस एक्ट बीएनएस को बनाने का पर्पस, पहला पर्पस कंसोलिडेट करना था। किन चीज़ों को कंसोलिडेट करना था? ऐसे लॉज को जो ऑफेंसेस के बारे में बताएं और पनिशमेंट के बारे में बताएं, उनको कंसोलिडेट करना और उसमें कुछ अमेंड करना। जो ऑब्सोलीट हो चुके थे, जो यूज़ में नहीं थे, अब पुराने हो गए थे, उनको अपडेट करने की नीड थी, उनको अमेंड करना, उनको चेंज करना। तो कंसोलिडेट एंड अमेंड करना। तो जैसे आईपीसी अब इज रिपील्ड, द लास्ट सेक्शन ऑफ बीएनएस सेज आईपीसी इज हियर बाय रिपील्ड। तो इसने अमेंड क्या किया? आईपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जिनकी पनिशमेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइन पनिशमेंट, काफ़ी कम थे, तो उनको फाइन बढ़ा दिया गया उसमें, तो पनिशमेंट इंक्रीज हो गई। ऐसे ही कई ऑफेंसेस जो नहीं थे, अलग अलग स्कैटर्ड थे, उनको कंसोलिडेट किया गया। सो दिस इज द लॉन्ग टाइटल ऑफ दिस एक्ट. Be it enacted by Parliament in the 74th year of the Republic of India. प्रीलिम्स में ऐसे कई बार क्वेश्चंस मैंने देखा है जो कि इसमें पूछा गया है कि इसमें ये लाइन लिख दी जाती है 70 किसी भी एक्ट के रिगार्डिंग, दिस एक्ट वाज बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 73rd ईयर 70th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर उस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट ऑप्शन में देकर के पूछी जाती है। तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट की जो इन्फोर्समेंट डेट है क्या ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
तो इस गिवन स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे निकाला जाता है ये, बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक. It is 1950, 26 January 1950, the day on which the Constitution of India came into force, 26th January 1950. So that year 1950 is the year India became republic. तो इस 1950 से इसमें हम प्लस कर देते हैं जो 74 लिखा है, तो 1950 प्लस 74 बिकम्स 2024. नाउ ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट हो गई. लेट अस सी. So 74th. So 1950 plus 74 becomes 2024. So this is the enforcement date in actual. We know that सारे criminal laws, BNS and BSA got enforced on 1st July 2024. Now, if we start from chapter 1, preliminary, the section 1 talks about the short title, commencement and application. That was the long title. Now this is the short title. What is short title? Short title is nothing but the name of the statute. इस बुक को, इस स्टैच्यूट को मैं क्या बोलूँगा, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, क्या नामकरण होगा, इसको किस नाम से बुलाएंगे, तो इसको दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023. सो दिस इज द शॉर्ट टाइटल. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 1, कमेंसमेंट. कमेंसमेंट जी, कमेंस कब होता है? इनफोर्स. जैसे कि दो वर्ड पूछे जाते हैं, इनैक्टमेंट. Most of the times I have been asked what is the difference between enactment and enforcement. The students get confused. Enactment वो होती है जब आपका स्टैच्यूट बन के रेडी हुआ. फॉर एन एग्जाम्पल, इनैक्टमेंट डेट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? 26 नवंबर 1949. बट इन्फोर्समेंट डेट 26 जनवरी 1950. तो इनैक्टमेंट इज़ द ईयर और इज़ द टाइम जब आपका स्टैच्यूट बन के रेडी हो गया, आपके हाथ में रेडी है, रेडी टू गो है. इन्फोर्समेंट डेट जब आप वो फोर्स में आता है, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होता है, तो वो होता है इन्फोर्समेंट डेट. तो इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है? 25 दिसंबर 2023. इस दिन इसको एसेंट मिली थी. इनैक्टमेंट डेट इज ऑल्सो नोन बाय द टर्म एसेंट डेट, एसेंटिंग डेट, जब इसको एसेंट मिलती है. लेकिन ये इन्फोर्स होता है 1 जुलाई 2024. It shall come into force on such date as the central government may by notification the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of the Sanhita. This is the very historical line, and different dates may be appointed. Now, doesn't it seem to be unusual? Different dates may be appointed for different provisions of the Sanhita. मतलब कि this act is not going to come into force in one go. All its provision are not going to come into force in one go. पैचेस में अप्लाई होंगे, थोड़े अभी थोड़े बाद में. जैसे कि वी टेक द एग्जांपल ऑफ 106 क्लॉज 2. इसमें इफ़ वी रिमेंबर, वी कैन रिकॉल, जब ट्रक ड्राइवर्स ने काफ़ी स्ट्राइक कर दिया था, पूरा हड़ताल कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिया था, सामान इधर से यहाँ से वहाँ गुड्स जा नहीं पा रहे थे, तो जहाँ जा नहीं पा रहे थे वहाँ पे गुड्स की या उस पर्टिकुलर स्टफ़ की जो डिमांड थी वो तो बढ़ती जा रही थी, बट उसकी सप्लाई कम हो गई थी. प्राइसेस हाइक होने लगे थे, पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होने लगे थे. न्यूज़ में देख रहे थे कि ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर रखा है, जाम कर रखा है. वो यही रीज़न था. उनकी मांग ये थी कि जो 106 या 106 क्लॉज 2 में जो पनिशमेंट दी गई है, नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ करना ड्राइव करते हुए, तो ट्रक ड्राइवर्स का कहना था कि हमारी लगभग एक महीने में 25 दिन तो मैं ट्रक ही चलाता हूँ, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग प्लेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग सम ऑफेंस एक्सीडेंट की वजह से इज़ वेरी हाई फॉर बी काइंड ऑफ पीपल. तो पनिशमेंट 10 साल तक लिखी गई थी, उसमें पनिशमेंट 10 साल तक है. तो इसको इन्होंने अपोज किया. तो इनका कहने का मतलब था कि ये पनिशमेंट इतनी ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए. तो वो पर्टिकुलर प्रोविज़न 106 क्लॉज 2 अभी भी इनएप्लीकेबल है, वो भी अप्लाई नहीं किया गया है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस, फॉर मतलब डिफरेंट डेट्स विल बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता. Now, the next concept we have to talk on the jurisdiction.
which is very much important of from prelims point of view. The jurisdiction of BNS can be divided into two parts. First is intra-territorial and the second is extraterritorial in nature. Intra-territorial and extraterritorial. Intra-territorial means intra means in, within इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही. एक्स्ट्रा मीन्स इंडिया की टेरिटरी के बाहर. इफ आई टेक इंट्रा टेरिटोरियल एंड डिस्कस, इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब कि ऐसा कोई भी पर्सन, मैंने ऐसे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन या एवरी पर्सन. इट मीन्स एंड इंक्लूड्स इंडियन सिटीजन एंड फॉरेनर ऑल्सो. तो कोई एक ऐसा सिटीजन इंडिया का या फॉरेनर सिटीजन, आई मीन फॉरेनर और इंडियन सिटीजन, इन दोनों में से कोई भी इंडिया में रहते हुए कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट करे जो बीएनएस में लिखा हुआ है, तो वो गिल्टी माना जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी. एवरी पर्सन मीन्स फॉरेनर ऑल्सो. बिफोर गोइंग फर्दर आई मस्ट टेल यू व्हाट डज इंडिया मीन. इंडिया का मतलब क्या हुआ, इंडिया क्या होता है. इफ वी लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 इंडियन टेरिटरी क्या होती है. उसमें स्टेट्स आते हैं, यूटीज आते हैं, यूनियन टेरिटरीज, और फ्यूचर में एक्वायर होने वाली कोई भी टेरिटरी आ जाएंगी इंडियन टेरिटरी में. तो 3 थिंग्स कम, स्टेट्स, यूटीज एंड फ्यूचर में एक्वायरिंग स्टेट्स, एक्वायरिंग सिटीज, एक्वायरिंग टेरिटरीज. Let us go more deeper. What does India mean and what things come under the concept or ambit of Indian territory? The first and foremost, landmass. Landmass plus water. Next, maritime territory. You all keep on noting it down. I'm dictating. Landmass, water, maritime territory, which is 12 nautical miles from the seashore, प्लस एनी शिप और एनी क्राफ्ट विच इज़ इंडियन. अब ये इंडियन है, इंडियन एयरक्राफ्ट या इंडियन शिप है, ये कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये इंडियन रजिस्टर्ड है, इट इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया. तो रजिस्टर्ड शिप या रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट वो इंडिया का ही भाग माना जाएगा, इंडिया का ही. अगर वो शिप है तो माना जाएगा कि इंडियन फ्लोटिंग टेरिटरी है, एक ऐसी टेरिटरी जो फ्लोट हो रही है. क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर शिप इंडिया में रजिस्टर हुआ है, तो इंडियन टेरिटरी माना जाएगा. इंडियन एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन, इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडियन लैंड माना जाएगा. प्लस इंडिया की जो शेप है, जो इंडिया का जहाँ जहाँ लैंड है उसके ऊपर एयर कॉलम अबव द लैंड मास इज ऑल्सो इंडिया टिल इनफाइनाइट. येस, टिल इनफाइनाइट इट इज़ इंडिया. एयर कॉलम अबव द लैंड मास ऑफ इंडिया. लैंड मास प्लस वाटर मास, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर है उसके ऊपर एयर कॉलम है, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया का ही टेरिटरी है. प्लस इंडिया का जैसा भी स्ट्रक्चर, जैसा भी शेप है, उसकी लैंड मास प्लस वाटर टेरिटरी, वाटर बॉडी के नीचे, बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ मीन्स लैंड, जमीन के नीचे कहाँ तक, कोर या सेंटर ऑफ द अर्थ तक इंडिया है. तो इन सारी जगह कोई भी इंडियन इंडिया में रहते हुए या फॉरेनर इंडिया में रहते हुए कोई भी कमिट करते हुए ऑफेंस बीएनएस में जो लिखा हुआ है वो गिल्टी माना जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी एंड ही विल बी प्रोसिक्यूटेड एज पर इंडियन क्रिमिनल लॉ. सो आई टोल्ड यू very deeply what does India mean and what things do comprise in Indian territory. Now, let us take a few examples. Suppose so this was basically intra-territorial, which is very simple and easy to understand. कोई भी इंडियन या कोई भी फॉरेनर इंडिया में कमिट करता है कोई भी ऑफेंस तो वो
प्रोसिक्यूट किया जाएगा इंडिया में। कुछ प्रोपोजिशंस लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक इंडियन लेडी है, वो अमेरिका जाती है, वहाँ पे वो सेटल होने की कोशिश करती है, और वो किसी अमेरिकन मैन के साथ रिलेशनशिप में आती है। रिलेशनशिप में थी, लेटर ऑन वो शादी भी कर लेती है उसी अमेरिकन से। बाद में शादी करने के बाद बाद में पता चलता है कि द मैन वॉज ऑलरेडी मैरिड। अब वो जो द लेडी वॉज ड्यूब्ड, उसको बेवकूफ़ बनाया गया बाय डैट अमेरिकन। अब यहाँ पे विक्टिम कौन है? दैट लेडी। और एक्यूज कौन है? दैट अमेरिकन बॉय। अब यहाँ पे उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा कौन से लॉ से? क्या वो इंडियन लॉ से प्रोसिक्यूट होगा कि अमेरिकन लॉ से प्रोसिक्यूट होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, जो क्रिमिनल जोरिस्टिक्शन देखा जाता है वो ना कि विक्टिम बट एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एक्यूज्ड कहाँ का रहने वाला है, जहाँ का रहने वाला है वहाँ का क्रिमिनल लॉ उस पर अप्लाई होगा, और वहाँ की क्रिमिनल लॉ से वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे जो वो लेडी है, वो विक्टिम है, वो इंडियन है बट वो विक्टिम है। तो लो एंड बिहोल्ड, सरप्राइजिंगली वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उस लेडी के बिहाफ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, हम इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो जोरिस्डिक्शन देखा जाता है वो एक्यूज का देखा जाता है, ना कि विक्टिम का देखा जाता है। तो दैट अमेरिकन विल बी पनिश्ड, prosecuted and punished by that American criminal law, not in Indian। कोई भी लॉ, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एक्यूज ने किया है, फॉरेनर है, इंडिया के बाहर किया है, बट इंडियन के अगेंस्ट किया है बाहर, और अगर वो वहाँ पे ऑफेंस है उसके एक्यूज के कंट्री में, तो उसको प्रोसिक्यूट वहाँ मिलेगा। ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी कि उसके द्वारा किया हुआ ऑफेंस वहाँ पे तो पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ऑफेंस नहीं है बट इंडिया में ऑफेंस है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि अगेन द प्रिंसिपल सेज, द इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल सेज दैट it is the criminal jurisdiction of accused which matters, not the victim। So I'll be stopping here, a lot to a lot more to discuss on this। I'll start again this concept and will explain you further। अभी तो इस पर काफ़ी बातें करनी है, इंट्रा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे काफ़ी प्रोपोजिशंस हैं। सो आई मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस particular topic। So for today, I think this much is enough। Now I'll be going ahead taking this jurisdiction topic in the fourth lecture of BNS। Till then, you just wait for the next class of BNSS, that is the third lecture of BNSS। Thank you।